Good morning, students. In this slide, we are going to study the cell organelles, Golgi apparatus, mitochondria, and lysosomes. Reference is your NCERT book. In the previous slide, we have read about another organelles like nucleus. So, we start here with an organelle Golgi apparatus. First, this Golgi apparatus is first described by Camillo Golgi. इस apparatus को, इस organelle को सबसे पहले कैमिलो गोल्गी ने डिस्क्राइब किया था और उन्हीं के नाम पर इस ऑर्गेनल का नाम रखा गया, गोल्गी एपरेटस. इन योर एनसीईआरटी बुक एक कॉलम में कैमिलो गोल्गी की थोड़ी लाइफ हिस्ट्री दी हुई है कि उन्होंने कहाँ पढ़ा और किस साइंटिफिक फील्ड में उनका योगदान था. ही स्पेशली performed his experiments on nervous tissue, nerve cells, and he also got Nobel Prize. In that column, read his history, biography, and know about him. It is a double membrane bound organelles. Organelles can be single membrane bound and double membrane bound. It is double membrane bound organelles, so it will be found only in eukaryotes. I have already told you that in the difference of eukaryotic and prokaryotic cell, membrane bound organelles are not found in prokaryotes, and Golgi apparatus is a double membrane bound organelle. Double membrane bound organelles are not found in prokaryotes. It is only found in eukaryotes. It forms a complex cellular membrane with endoplasmic reticulum. When you will absorb different kinds of cell, you will see that there will be a continuity in the structure of nucleus, endoplasmic reticulum and Golgi apparatus. जब हम लोग देखेंगे सेल को तो सेल में गोल्गी पहले न्यूक्लियस रहेगा. न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से कंटिन्यूटी में उसके न्यूक्लियर पोर से निकलता हुआ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा. फिर उसी के आसपास इंडोप्लाज्मिक गोल्गी एपरेटस रहेगा. मीन्स न्यूक्लियस, उसके बाद न्यूक्लियर पोर से तुम्हारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, and then the Golgi apparatus will be found just nearby the endoplasmic reticulum. रीज़न क्या है इसका मैं तुमको बताऊंगी, क्योंकि तीनों का जो एक्शन है वो को रिलेटेड है. न्यूक्लियस जो केमिकल सिंथेसिस का ऑर्डर देता है वो पास होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वाया न्यूक्लियर पोर. इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन की सिंथेसिस करता है. स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड की सिंथेसिस करता है. लेकिन ये रॉ लिपिड एंड प्रोटीन होते हैं, इनको मॉडिफाई करना रहता है, इनको एक्टिव फॉर्म में चेंज करना रहता है. इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस केमिकल सब्सटेंस को बनाकर वेसिकल्स के रूप में निकलते हैं. ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मैं दिखाई थी वेसिकल्स के रूप में निकलते हैं जो कि गोल्गी एपरेटस के द्वारा कैच किए जाते हैं. मतलब उनमें इंटर करते हैं गोल्गी एपरेटस में. इनसाइड द गोल्गी एपरेटस दीज ऑल केमिकल्स आर मॉडिफाइड इनटू इट्स मैच्योर फॉर्म, एक्टिव फॉर्म में इनको मैच्योर किया जाता है और जहाँ सेल की ज़रूरत है वहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है. सो इट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन विथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्ट्रक्चर कैसा है? इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर: elongated sac like cisternae,
सिस्टर्नी है, टिब्यूल्स कनेक्टिंग द सिस्टर्नी, दो सिस्टर्नी के बीच में टिब्यूल्स रहेंगे, छोटे से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि सिस्टर्नी को कनेक्ट करेंगे, एंड राउंड वेसिकल्स, और राउंड वेसिकल्स रहेगा। Here it is the diagram of Golgi apparatus. Golgi apparatus, in this diagram it is shown separated, particularly that only organelle. Sac-like structure, cisternae you can see, vesicles you can see here, tubules you can see here, and mature vesicles are coming here. Small vesicles at the side of cisternae comes from the endoplasmic reticulum. It is the forming phase, and mature vesicles are coming out of the maturing phase. Okay, here the vesicles get matured. So the Golgi apparatus has two phases, cis phase and trans phase. At cis phase, new vesicles are joined for maturation, and at trans phase, new vesicles are released after getting matured. cis phase पे नए vesicles आते हैं उनका मॉडिफिकेशन के लिए, और ट्रांस फेज पे वो मॉडिफाई होके मैच्योर होके रिलीज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। और फिर इस वेसिकल्स के अंदर क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस जहाँ उनको यूज़ होना है वहाँ वो वाया द साइटोप्लाज्म ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। नाउ देयर फंक्शंस, गोल्गी apparatus is a packaging organelle which modifies the materials synthesized by the endoplasmic reticulum. Okay, गोल्गी apparatus जो है वो पैकेजिंग मटेरियल है। जैसे सेवरल थाली में मिठाइयाँ रखी हुई हैं, एक सुंदर सा स्वीट बॉक्स दे दिया गया है और उसमें सारे एक एक मिठाई को चुन के रखना है ताकि एक आदमी को जहाँ नीड है वो पूरा मटेरियल वहाँ पे पैक करके दे दिया जाए। तो गोल्गी एपरेटस जो है वो यही काम करता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेवरल केमिकल सब्सटेंस को बना दिया, गोल्गी एपरेटस उसको एक पैकेट में डालेगा और जहाँ नीड है वहाँ वो उसको भेजेगा। It dispatches the materials inside and outside the cell membrane to various targets where they are needed. It also stores and modifies the products and secretes it in vesicles. You can see the diagram how the mature vesicles are coming out of the Golgi apparatus. जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केमिकल सब्सटेंस बनाया वो गोल्जी एपरेटस से मैच्योर होकर वेसिकल्स के फॉर्म में बाहर आते हैं। लाइसोसोम आगे एक ऑर्गेनेल है, पढ़ेंगे हम लोग। लाइसोसोमल एंजाइम्स जो हैं वो सारे गोल्जी एपरेटस के द्वारा प्रिपेयर्ड होते हैं, मीन्स एक्टिव फॉर्म में लाइसोसोम्स में पैक होते हैं। It receives new vesicles from its forming phase and modifies it and releases it as mature vesicles from its trans phase. Means गोल्जी एपरेटस का ऐसा ओरिएंटेशन रहता है कि एक फेस उसका फॉर्मिंग फेस रहता है जो कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास रहेगा, और एक फेस उसका ट्रांस फेज होता है जो कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फेस के अपोजिट रहेगा। ड्यूरिंग दिस चैनल वो सिस्टर्नी से पास होते हुए ट्रांस फेज में मैच्योर वेसिकल्स को रिलीज करेगा, और इस पूरे ट्रांसपोर्टेशन में वो सिस्टर्नी में अब प्रोडक्ट को, एंजाइम प्रोडक्ट या प्रोटीन प्रोडक्ट को मैच्योर करेगा। These all are the functions of Golgi apparatus. Cell biology, you must know that cell biology is a vast topic. This cell you have to also study in class 11th also. So there must be a difference in the standard of studying the cell organelle. कुछ बातें तुमको 9th में पढ़नी है और कुछ बातें तुमको 11th में पढ़नी है।
I am focusing on only the standard of NCERT book of your class. 9th में जो बातें तुमको पढ़नी है उसी बातों पर मैं फोकस कर रही हूँ, और इस चैप्टर्स को हम सेल बायोलॉजी में 11th में भी पढ़ेंगे सेल चैप्टर में, तो उसमें इस गोल्जी एपरेटस का थोड़ा और इनलार्ज्ड रूप पढ़ेंगे, क्योंकि सेल बायोलॉजी इज अ वास्ट फील्ड ऑफ द बायोलॉजी. Cell is the basic structural and functional unit of life. So its work and functions are in a very diversified form. इसके फंक्शन जो हैं वो बहुत डाइवर्सिफाइड फॉर्म में है. इसीलिए हर क्लास में एक स्टैंडर्ड और एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए किसी ऑर्गेनेल के बारे में. 9th में तुमको इतना जानना होगा, 11th में और भी ज़्यादा हम लोग इनलार्ज करके इसके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे. Now come to the next, or come to this diagram. Here I have tried to show you the complex membrane system, how the three structure are joined with each other. कैसे तीनों स्ट्रक्चर जो हैं वो आपस में ज्वाइंट हैं. देखो, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर पोर से ज्वाइंट है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. देन द फॉर्मिंग साइट ऑफ गोल्जी एपरेटस, वो वेसिकल्स जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलीज किए वो गोल्जी एपरेटस में जाएंगे. एंड वाया टिब्यूल्स वो फॉर्मिंग फेज से होते हुए मैच्योर फेज में ट्रांस फेज की ओर जाएंगे, और मैच्योर वेसिकल्स के रूप में इन द फॉर्म ऑफ मैच्योर वेसिकल्स दे विल बी रिलीज्ड. हियर इट इज द न्यूक्लियस, and this arrow is showing what? The direction of the vesicles going for the maturation. Okay, now the next organelle, it's a very important organelle. जैसे ये सफाई कर्मचारी है सेल का, इट्स अ cleanliness department. It lysosomes perform the function of cleanliness. जैसे सेल लिविंग है, बहुत सारे फंक्शन कर रहा है, बहुत सारे केमिकल्स की सिंथेसिस हो रही है, फिर सेल डेथ भी करता है, ऑर्गेनल्स वर्न आउट होते हैं, ख़राब होते हैं, उनका सीनेसेंस एज आता है, मतलब वो काम करते करते थक गए रहते हैं, बूढ़े हो गए रहते हैं. तो ये लाइजोसोम्स जो हैं वो वैसे वैसे सेल्स को, जो कि सेल्स को या सेल ऑर्गेनल्स को हटाते हैं, क्लीन करने का काम करते हैं, जो कि वर्न आउट हो गए हैं या उनमें कोई प्रॉब्लम आ गया है. उसके अलावा ये लाइजोसोम्स एक्सटर्नल कोई मटेरियल हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है, लाइक बैक्टीरिया और जर्म्स, उस पे भी अटैक करते हैं और उनको भी डाइजेस्ट करते हैं. तो कैसे करते हैं? इनके अंदर जो है वो डाइजेस्टिव इंजाइम्स होता है, जो कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस, ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस को डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी रखता है. और इस इंजाइम्स को हम लोग डाइजेस्टिव इंजाइम्स या हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स कहते हैं. हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स मीन्स digestive enzymes that breaks the chemical compounds or organic compounds that are found within the cell, like protein, lipid, etc. It is a single membrane bound organelle, not double membrane bound organelle. It is a single membrane bound organelle. They are matured in the Golgi apparatus. I have already told you. Their enzymes are prepared in rough endoplasmic reticulum. Because these enzymes are proteinous in structure, proteinous in nature, and where the protein are synthesized in the rough endoplasmic reticulum. Please correlate all the organelles with the previous studied organelles. Cell function as a unit with कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल इट्स सेल ऑर्गेनल्स. सेल जो है वो अपना काम एक यूनिटी में करता है, जिसमें उसके सारे सेल ऑर्गेनल्स एक दूसरे को हेल्प करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, ताकि एक अच्छा रिजल्ट आए,
सेल जो है फंक्शनल और बेसिक यूनिट बने। तो लाइजोसोम्स का जो प्रोटीन सिंथेसाइज होगा वो कहाँ होगा? प्रोटीन मैच्योर होगा गोल्जी एपरेटस में, सिंथेसाइज होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो सब देखो सारे ऑर्गेनल्स कैसे को रिलेटेड हैं आपस में। They are made up of digestive enzymes which can break and digest many cellular chemicals and worn out cells. Worn out cells means पुराने हुए और पुराने हो गए, फटे, चिथरे, इस सब को क्या कहते हैं? worn out cells. डायग्राम में एक सिंपल गोल स्ट्रक्चर है राउंड and it is filled with digestive enzymes. It is single membrane bound organelle, so it may found in prokaryote and eukaryotes also. Function: it acts as the cleaner of the cell. It digests the worn out cell organelles as well as foreign particles like bacteria or food. Foreign particles का मतलब क्या हुआ? जो पार्टिकल्स हमारे बॉडी में बाहर से जा रहे हैं, जैसे बैक्टीरिया और फूड, इनको भी डाइजेस्ट करता है। ड्यू टू इट्स एक्शन इट इज़ नोन एज सुसाइडल बैग। जब किसी सेल को डाई आउट होना रहता है, उसका काम खत्म हो गया रहता है, वो सीनेसेंस एज में चला गया रहता है, उसमें अब कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही होती, तो ये लाइजोसोम्स को ऑर्डर मिलता है, वो उस सेल के पास जाता है और अपने मेम्ब्रेन को बर्स्ट कर देता है, उसके ऊपर जाके फट जाता है और सारे एंजाइम्स उस वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल पे रिलीज हो जाते हैं और वो सेल ऑर्गेनल डाइजेस्ट होके उसके सारे केमिकल्स ब्रेक होके सेल के बाहर चले जाते हैं एंड इन दिस वे इट इज़ कॉल्ड एज सुसाइडल बैग. नाउ the next organelle is very important organelle, that is your mitochondria. That is your mitochondria. It is a double membrane bound organelle, so it will be found only in eukaryotes, not in prokaryotes. prokaryotes में ये नहीं पाया जाएगा. जो बैक्टीरिया का डायग्राम में दी थी उसमें ये prokaryotes में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहेगा. इट इज़ नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. ये पावर एनर्जी देता है सेल को. सेल को कोई भी किसी भी ऑर्गेनिज्म को कुछ भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, हमें काम करने के लिए एनर्जी चाहिए. तो ये एनर्जी कहाँ से आ रहा है? तो ये सेल लेवल पे ये माइटोकॉन्ड्रिया ही है जो हमें केमिकल कंपाउंड के रूप में एनर्जी देता है. दिस chemical compound is called ATP. Full form is adenosine triphosphate. ये तुम्हारा एक्सपैंड है, ATP का इम्पॉर्टेंट है. ये जो ATP है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है. जैसे ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे सेलुलोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लिपिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसी तरह ये ATP भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा बनाया जाता है. माइटोकॉन्ड्रिया तुम्हारा ये ATP जो है वो बनाता है एंड इट इज़ कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. यही एनर्जी करेंसी है. जैसे हमारे जीने के लिए फिज़िकल लाइफ में पैसे की ज़रूरत है, करेंसी की ज़रूरत है, कुछ भी खरीदें या अपने लाइवलीहुड को मेंटेन करने के लिए, उसी तरह सेल अपने काम को मेंटेन करता है वो इस ATP को खर्च करके. नीचे मैं ATP का डायग्राम बनाने का कोशिश की हूँ. ये जो रोम्बस स्ट्रक्चर है वो एडिनोसिन का स्ट्रक्चर है एंड ट्राईफॉस्फेट मीन्स 3 फॉस्फेट मीन्स 3 फॉस्फोरस ग्रुप P+P+P. जब कोई केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर होता है और उसे एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो यही फॉस्फेट बॉन्ड जो है वो टूटते हैं. केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे कि बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी रिलीज़ होता है और यही एनर्जी जो है वो हम लोग यूज करते हैं, सेल यूज करता है अपना केमिकल रिएक्शंस को करवाने में. ये थोड़ा सेटिंग में हुआ है
ATP इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ये रोम्बस स्ट्रक्चर थोड़ा ऊपर फॉस्फेट पी के पास जाएगा और इसके अंदर छुप गया है सेल। आई एम वर्किंग हार्ड टू मेक द स्लाइड मोर एंड मोर रीडेबल। हेयर देयर इज सम मिस्टेक्स इन द सेटिंग। रोम्बस को थोड़ा ऊपर बनाएंगे और फॉस्फेट प्लस फॉस्फेट मीन्स फॉस्फोरस, 3 फॉस्फोरस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में रहता है, जिसके ब्रेक करने से जो एनर्जी रिलीज होगी वो सेल अपने केमिकल रिएक्शंस में यूज करता है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो उसमें एटीपी का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया के जगह पे दूसरे कोई प्रिमिटिव ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि एटीपी के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, लेकिन फिर भी वो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह एटीपी सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं। ओके, now you have to concentrate here. ATP, it is a new term for you. Structure, it has an outer membrane, it has an inner membrane which have enfoldings अंदर एक सिलेंड्रिकल और क्या कहेंगे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक अंदर तक इनफोल्डिंग जाता है इसका, दैट इज कॉल्ड सिस्टर्नी। सिस्टर्नी इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। सिस्टर्नी जो है वो सरफेस एरिया फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। मीन्स ये जो इनफोल्डिंग्स होंगे, इन इनफोल्डिंग्स से माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया इनलार्ज हो जाता है। जैसे एक गोल सा केवल स्ट्रेट स्ट्रक्चर है और एक मुड़ा करके स्ट्रक्चर है, तो किसका एरिया इनलार्ज्ड होगा? जो जिसमें ज़्यादा इनफोल्डिंग्स है उसका एरिया क्या होगा? इनलार्ज्ड होगा। तो इन इनफोल्डिंग्स को हम लोग सिस्टर्नी कहते हैं। इस इनफोल्डिंग्स को क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। इनर प्लाज्म, इट्स इनर प्लाज्म इज कॉल्ड मैट्रिक्स। इसके इनर प्लाज्म को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। इन द सेम वे जैसे हम लोग न्यूक्लियस के इनर प्लाज्म को न्यूक्लियोप्लाज्म कह रहे थे। एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया is that it has its own DNA and ribosomes, so it is called as semi-autonomous organelle. इस बात को कोरिलेट करो तुम, जब हमने न्यूक्लियस को पढ़ाया था तो मैं कही थी कि न्यूक्लियस सारे दूसरे ऑर्गेनल को कंट्रोल करता है, उसके फंक्शन को गाइड करता है। किस सेल ऑर्गेनल को क्या करना है ये कंट्रोल्ड है न्यूक्लियस के द्वारा। और न्यूक्लियस अपना ये काम कैसे करता है? क्योंकि उसके अंदर जो है वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। न्यूक्लियस को फिर से देखो। लेकिन हमारे सेल ऑर्गेनल्स में भी कुछ ऐसे ऑर्गेनल हैं जिसमें पहला एग्जाम्पल है माइटोकॉन्ड्रिया का। इसके अंदर खुद इसका भी अपना छोटा सा डीएनए है, लेकिन बट दिस डीएनए इज डिफरेंट फ्रॉम न्यूक्लियर डीएनए। और ये डीएनए उतना एडवांस और उतना इनलार्ज्ड नहीं है जितना कि न्यूक्लियर डीएनए है। न्यूक्लियर डीएनए में सारे एक्टिविटीज़ के फंक्शन को कंट्रोल करने का उसमें कैपेसिटी है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में ये स्मॉल डीएनए है और ये सर्टेन फंक्शंस एंड इट्स ओन फंक्शन, अपना फंक्शन ही कंट्रोल करने का या केमिकल सब्सटेंस सिंथेसिस करने की कैपेसिटी है। ये अपने डीएनए से किसी और दूसरे ऑर्गेनल को गाइड नहीं कर सकता, बस अपने आप का अपनी ज़रूरत कुछ पूरी कर सकता है, लेकिन वो भी पूरा नहीं। ये माइटोकॉन्ड्रिया भी कुछ न कुछ न्यूक्लियस के अंडर कंट्रोल है, टोटली अपना रिक्वायरमेंट ये पूरा नहीं कर पाता, इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल कहते हैं। सेमी मीन्स हाफ
Autonomous means self-dependent organelle, means half at a certain point it is self-dependent organelle. It can synthesize some of its required proteins of its own. ये अपने रिक्वायर्ड प्रोटीन्स को खुद भी बना सकता है, क्योंकि एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल है, ये पावर हाउस ऑफ द सेल है. इसको केमिकल सब्सटेंस, एनर्जी करेंसी, सेल एनर्जी करेंसी एटीपी बनानी है. अब उस एटीपी को बनाने के लिए ढेरों सारे इंजाइम्स और केमिकल्स का यूज होगा. तो ये सोचा कि क्यों ना हम अपना केमिकल, क्योंकि मेरा डिमांड ज़्यादा है, तो हम अपना भी कुछ केमिकल्स खुद से बना लें. तो क्या करते हैं, इसके केमिकल्स को माइटोकॉन्ड्रिया का ऐसा डेवलपमेंट हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया खुद अपने केमिकल को बना सकता है, एंड दैट विद द हेल्प ऑफ इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स. राइबोसोम्स प्रोटीन को बनाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो इसके पास अपना ओन डीएनए है और राइबोसोम्स है. बट रिमेंबर, राइबोसोम्स एंड डीएनए बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम द न्यूक्लियर राइबोसोम्स एंड डीएनए. जो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स है और जो न्यूक्लियस में डीएनए है, उनसे इसका डीएनए और राइबोसोम डिफरेंट रहता है. वो हम लोग नेक्स्ट हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. नाउ दिस इज़ द डायग्राम ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. इट इज़ 2D, ये 2D में है. इन बुक 3D इज गिवन. आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन. See here the enfoldings of inner membranes. ये enfoldings of inner membrane है. Enfoldings of inner membrane, this is your nucleus. This is your DNA, mitochondrial DNA. Small ribosomes are there, and the whole plasma is called matrix. Means the outer membrane, inner membrane, enfolding cisternae, this DNA, mitochondrial DNA, this is ribosomes and matrix. This is the simple structure of mitochondria. These enfoldings are important because this cristae increases the area for the synthesis of ATP. It provides energy for the biochemical reactions of the cell. Its function is the most important function in the cell. It is the powerhouse. The energy is in the form of ATP, so it is called as the powerhouse of the cell. In this slide, we will read only this much amount of the cell organelle, that is Golgi apparatus, mitochondria and lysosomes. Golgi apparatus plays important role in packaging and maturing of the chemical substances. Lysosomes are the suicidal bags or cleaner of the cell, and mitochondria is the powerhouse of the cell with which synthesize the energy in the form of ATP, adenosine triphosphate, that is the cell energy currency, which is utilized, जो कि यूटिलाइज होता है जब सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है अपने केमिकल रिएक्शंस को करने में, तब. ओके, रीड द बुक. टुडे वी हैव फिनिश्ड द पेज नंबर 64 and 65. Tomorrow we will finish this chapter by including 2 more organelles like plastids and the ribosomes. Okay, keep reading the book and write these notes in your copy with good writing and correct spelling. Okay, thank you.